Hi friends, welcome to our YouTube channel CS Ansar. I am Nandita Nangia and today we will discuss about the latest decision by Supreme Court on LTC, Leave Travel Concession, that whether TDS to be deducted on LTC or not. To discuss the same, I heartily welcome CAIP Vivek Khurana sir. Thank you so much sir for giving your valuable time to us. Before Vivek sir start his deliberation, I request you all to please subscribe our YouTube channel and also press the bell icon so that you will receive all the notifications about our new videos and webinars. So, sir, can you please guide us on the latest judgment that Supreme Court has recently announced on LTC? Yeah, thank you very much, Nandita ji, for such a warm welcome. And my sincere thanks to Team CS Ansar for giving me once again opportunity on your platform to speak on the different topic. And this time, this is very important Supreme Court judgment. And you rightly said, Supreme Court has recently decided whether TDS is to be deducted on LTC or not, live travel concession. So that we will discuss. And let me show you through the PPT. I think PPT is visible. So whether TDS to be deducted on leave travel concession LTC, so Supreme Court has decided. So before that, one disclaimer is there. All these are my personal views and can't be constitute the views of the ICI, CSNSR or any other person or any other authority. And please don't take it any legal advice or the legal opinion, professional advice or the professional opinion. And the purpose of this video is just to spread knowledge, information, awareness, and shall not be treated as solicitation in any manner or for any other purpose whatsoever. And my request to all the viewers, please also go through the relevant income tax section, income tax rules, notifications, circulars, and this Supreme Court judgment. जो Supreme Court की judgment है, we will give you the link into the either into the comment box so then you people can download it. I will also send it to the CSNR team so that they can post into the CSNR and then give the link into the comment box. So this Supreme Court judgment on TDS on LTC, this is in the case of State Bank of India versus Assistant Commissioner of Income Tax, and this was by the our Honorable Chief Justice of India UU Lalit ji and Justice Ravindra Bhat ji and Justice Sudhanshu Dhulia ji. जो इनकी जो बेंच है, they have decided this one, and then in this judgment, तो इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ दिस केस एंड इन दिस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द एलटीसी क्लेम जो एलटीसी क्लेम है इसके ऊपर भी हम करेंगे कि एलटीसी क्या है इज नॉट लाइबल फॉर द एग्जम्पशन एज दीज एम्प्लॉयज हैज लिस्टेड फॉर एंड देन जो क्वेश्चन था तो एसबीआई इज आल्सो assessee in default for not deducting the TDS from its employees. So इसकी जो भी पहले हिस्ट्री पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं देन विल गो थ्रू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. सो LTC वी ऑल अवेयर कि लीव ट्रैवल कंसेशन क्या होता है कि व्हेन इट वाज स्टार्टेड देन द पर्पस जो गवर्नमेंट का पर्पस था टू एग्जाम द एलटीसी इज बेसिकली कि आप इंडिया घूमें एंड द टूरिस्ट इंडस्ट्री को प्रमोट करें एंड द पर्पस वाज दैट फॉर एलटीसी एंड दैट्स व्हाई दे हैव एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट कि सेक्शन 10(5) में कि अगर आप एम्प्लॉयर से कोई एलटीसी क्लेम करते हो इन ईयर उसमें कुछ प्रोस्क्राइब्ड रूल्स है वो हम डिस्कस करेंगे इन सेक्शन 10(5) एंड द रूल 2 ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स. उसमें सारा कुछ मेंशन है कि आप अगर आपका एम्प्लॉयर आपको या आपकी फैमिलीज को कुछ एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशन प्रोवाइड करते हैं तो हाउ इट्स एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(5). तो इस केस में क्या था कुछ employees of the SBI they claimed the LTC and they visited into different places like in this case they have visited to Delhi to Madurai to Kuala Lumpur Singapore then Colombo and then came back to Delhi and then in this they claimed all amount from the SBI and SBI said yes okay
and we have paid to you the LTC amount, जो भी है reimbursement है LTC की through the tickets and all the details, and they have not deducted the TDS under section 192 because they said this is not any other payment, this is the LTC and LTC is exempt under section 10(5). This was the one brief idea of the case, and then when case came to the scrutiny, then assessing officer, they have rejected the claim. They said no, जो आपने LTC क्लेम किया है इट्स नॉट एग्जम्प्टेड बिकॉज जो एम्प्लॉयज हैं दे हैव विजिटेड टू द फॉरेन कंट्रीज and which is not permissible under the law. And also, if it's not LTC, then it means you are paying some amount to the employees, and then it's your duty to deduct the TDS. So you are assessing default कि आपने TDS नहीं deduct किया on that amount. Then in CIT appeal, they have the same view. ITAT, they have the same view. Then State Bank of India, they move to the ITAT का जो order है उसके against they move to the Delhi High Court, and Delhi High Court dismissed the appeal. दिल्ली हाई कोर्ट सेट कि जो आईटीआईटी का ऑर्डर है वी अपहेल्ड द ऑर्डर जो आईटीआईटी ने पास किया है कि नो इट्स नॉट एलटीसी because you can't claim LTC as the exemption because employees has visited to foreign, and also you have not deducted the TDS कि आपने TDS नहीं डिडक्ट किया ऑन द अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉय. So Delhi High Court ki this was the view ki they have dismissed the appeal and they have upheld the order passed by the ITAT because इसमें then इसके ऊपर भी मैं आता हूँ. SBI moved to the Supreme Court against the order passed by the Delhi High Court, and Delhi High Court के order के गए जो Supreme Court में गए तो then the question was कि whether appellant who was in default for deducting the TDS for the some payment as the LTC. So whether जो हम कुछ स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा कि whether TDS to be deducted on the LTC, so then Supreme Court said जो पीछे CIT या ITAT या दिल्ली हाई कोर्ट ने डिफाइन किया तो उसके ऊपर we will also see on the section 10(5) क्या है, section 192 उसमें जो TDS डिडक्ट करते हैं या section 201 में जो 192 है जिसके अंदर जो TDS on salary है, there's the statutory duty of the employer to deduct TDS from the salary of the ex-employee, and then section 201 for the consequences कि अगर वो TDS डिडक्ट नहीं करते what would be the consequences, and section 10(5) जो exemption है, exemption of the LTC leave travel concession, तो section 10(5) जिसमें exemption प्रोवाइड की है. I told you earlier इसमें भी असिस्टेंट कमिश्नर ने एक उसमें एफिडेविट पे मेंशन किया था कि when this provision was started then what was the मोटो ऑफ द गवर्नमेंट कि जो आपको एग्जम्प्ट कर रहे हैं दिस इज टू प्रमोट द टूरिज्म इन इंडिया कि सो दैट एम्प्लॉय कैन टेक द एलटीसी एंड कैन विजिट टू द इंडिया इटसेल्फ. दैट वाज द मोटो ऑफ दिस एग्जम्पशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 10(5) जो एलटीसी है. एंड सेक्शन 10(5) व्हाट इट सेज, इन केस ऑफ इंडिविजुअल the value of travel concession or assistance received by are due to him from his employer for himself or his family in concession with his proceeding on leave to any place in India. कि आप अगर during your जब आप job पे हैं during your job on leave if you goes to the some traveling or from his employer or former employer for himself or his family in concession with his proceeding to any place in India after retirement from service or after the termination of service. Means अगर आप into the service है तब भी you can claim, अगर आपकी terminate सर्विस होगी या रिटायरमेंट होगी then also you can claim. तो उसमें भी इन्होंने कहा था सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, जो कुछ कंडीशन है एलटीसी के ऊपर गवर्नमेंट जो अप्लाई करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपने एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम करती है. एंड आल्सो दे सेट उसके अंदर पूरा सेक्शन 10(b) में था, दे डिफाइंड कि क्या प्रोविजो है, फिर उसमें एक्सप्लेनेशन में दे हैव डिफाइंड फैमिली में कौन कौन इंक्लूडेड है. एंड आल्सो this provision section 10(5) to be read with rule 2b of the income tax rules. rule 2b of the income tax rules में मेंशन किया हुआ है कि कितना अमाउंट, कितना, ये नहीं है कि आपने एलटीसी क्लेम किया आप गए कहीं भी चले गए और आप उसका पूरा अमाउंट क्लेम कर सकते हो. नो,
उसमें रूल 2B में मेंशन है कि आप क्या क्या क्लेम कर सकते हो। रूल 2B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो रूल 2B डिफाइन द अमाउंट एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(5) in respect of the value of the travel concession or assistance received by or due to the individual from his employer or former employer for himself or his family member in concession with his proceeding। आई टोल्ड यू कि उसके लिए या उसकी फैमिली मेंबर के लिए एलटीसी मिलता है, या जो उसका करंट एम्प्लॉयर है या फॉर्मर एम्प्लॉयर है ड्यूरिंग द जॉब और आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर टर्मिनेशन या एनी प्लेस टू इंडिया, अगर वो कहीं भी जाता है इन इंडिया, रिमेंबर दिस वर्ड इन इंडिया। देन सेकंड इट्स टू एनी प्लेस इन इंडिया आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस और आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस। पहले तो लीव टू इंडिया आ गया कि ड्यूरिंग दिस, पहले ए क्लोज में है। बी क्लोज में है कि टर्मिनेशन के बाद या फिर रिटायरमेंट के बाद एनी प्लेस इन इंडिया के अगर वो ट्रेवल करता है, तो उस केस में कुछ कंडीशंस हैं। कि पहली कंडीशंस है कि अगर वो उसकी जर्नी, हेयर द वर्ड इज प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड द प्लेस ऑफ कहाँ पे वो जा रहा है उस प्लेस तक, अगर उसकी जर्नी बाई एयर है, अगर वो बाई एयर करते हैं 1 अक्टूबर 97 के बाद, देन द हैव टू सी एयर इकोनॉमी फेयर। इसमें ये नहीं है कि आप बिजनेस क्लास में जा रहे हैं और उसको आप रिम्बर्स कर रहे हैं आपका एम्प्लॉयर, आप उसको पूरी एकदम चल रहे हैं। नो, इन रूल्स दे हैव डिफाइंड कि आप बाई एयर जा रहे हो, या अगर वो बाई एयर नहीं है तो बाई रेल जा रहे हो या बाई बस जा रहे हो, कैसे जा रहे हो एलटीसी के ऊपर, ऑल रूल्स पूरे क्लियर मेंशन है। मैं उसकी कुछ समरी आपको बता रहा हूँ। तो बाई एयर ओनली थ्रू द इकोनॉमी एयरफेयर एंड शॉर्टेस्ट रूट आपको देखना है। और अगर प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन आर कनेक्टेड विद द रेल, अगर वो रेल से कनेक्टेड नहीं है, अगर हमने पहले जो किया है कि अगर आप बाई एयर जा रहे हो, अगर रेल से कनेक्टेड है और फर्स्ट ओनर आफ्टर 1 अक्टूबर 97 जा रहे हो एंड द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका अदर देन बाई एयर है, अगर एयर के थ्रू नहीं जाते, देन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग एयर कंडीशनल फर्स्ट क्लास रेल फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो टू थिंग्स आर देयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज योर विजिट इन इंडिया, सेकंड इज थ्रू शॉर्टेस्ट रूट। तो ये तो पहले तो हमने देखा है, भाई एयर जाते हैं तो एयर का इकोनॉमी फेयर और शॉर्टेस्ट रूट। फिर अगर आपका रेल के थ्रू जाते हैं देन फर्स्ट क्लास एसी फेयर। और अगर आपका रेल से कनेक्टेड नहीं है देन टू केसेस आर देयर, कि जो आपका रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर वहां पे एग्जिट है तो फर्स्ट क्लास डीलक्स फेयर है और शॉर्टेस्ट रूट के थ्रू। अगर वो आपका नो रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि कोई रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेयर नहीं है, देन इन दैट केस एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर और शॉर्टेस्ट रूट मींस प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द प्लेस ऑफ डेथ, जो आपकी जर्नी है डेस्टिनेशन है वहां उन बिटवीन शॉर्टेस्ट रूट। सो दिस इज रिगार्डिंग द इनकम टैक्स रूल्स, रूल 2B, कि उसमें क्या क्या एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(5) जो एलटीसी, अगर कोई एलटीसी क्लेम करता है लीव ट्रैवल कंसेशन ड्यूरिंग हिज जॉब या आफ्टर हिज जॉब फॉर हिमसेल्फ हरसेल्फ और फॉर देयर फैमिली मेंबर्स के लिए, तो क्या क्या क्लेम कर सकते हैं। बाई एयर जाते हो, बाई ट्रेन जाते हो, बाई ट्रेन अगर रूट नहीं है तो कैसे जाते हो, अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो उस केस में क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो उस केस में क्या क्या एग्जाम्प्ट है। सो दिस वाज द रूल्स ऑफ द एलटीसी 2B के ऊपर। देन सुप्रीम कोर्ट जो अभी इस केस में था, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था कि नॉर्मली क्या होता है, जो एलटीसी जो हमने पीछे डिस्कस किया था, कि जो एलटीसी पेमेंट जो रिम्बर्स करते हैं टू अवर एम्प्लॉइज, जो भी एम्प्लॉइज हैं उनको रिम्बर्स करते हैं, दैट्स द एग्जम्प्टेड इनकम इन देयर हैंड्स एंड इन देयर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। अगर कुछ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं तो इन दैट केस नो क्वेश्चन टू डिडक्ट टीडीएस। तो मतलब आपने एलटीसी पे किया, दैट्स एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(5), तो वो उनकी सैलरी में ऐड नहीं होगा और हमें टीडीएस डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड बट उन केस में कंडीशंस क्या थी, कि जो आपका डेजिग्नेशन प्लेस है वो इन इंडिया होना चाहिए एंड थ्रू द शॉर्टेस्ट रूट, और इट शुड बी थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड लॉ, जो प्रिस्क्राइब्ड लॉ में उसमें हमने मेंशन किया था अकॉर्डिंग टू दैट। और अगर बाय चांस एलटीसी के थ्रू आप फॉरेन टूर पे जा रहे हो या फिर शॉर्टेस्ट रूट नहीं है, देन इट मींस इट्स नॉट योर एलटीसी, वो एलटीसी की एग्जम्पशन नहीं होगी अंडर सेक्शन 10(5) के अंदर। सो जो इस केस में था एम्प्लॉय ऑफ एसबीआई, इस केस में दे उन्होंने सिर्फ इंडिया में ही ट्रैवल नहीं करी,
बट दे आल्सो इन्वॉल्व द फॉरेन लेग्स, जो हमने पीछे हमने डिस्कस किया था, कुलालमपुर, कोलंबो, सिंगापुर, तो दे आल्सो इन्वॉल्व फॉरेन लेग एज वेल, और उनका शॉर्टेस्ट रूट भी नहीं था. तो दैट्स व्हाई जो डिपार्टमेंट हैड सेड they have violated the provision, statutory provision, and it's not only in, because जो LTC है, this is only into the India and from through the shortest place. So that's why जो LTC है, it's not exempt. बैंक्स जो है जो प्रोवाइड किया उनको रिम्बर्स करिए, इट्स नॉट एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(5), एंड बैंक is assessee in default, and it's their duty to deduct the TDS while making the payment. And that's why Supreme Court said जो LTC है is not for the foreign travel, and this is only for the travel within India. तो अगर आप फॉरेन ट्रेवल कर रहे हो, then the provision of section 10 under section 5 would not be applicable, आपको एग्जम्पशन अलाउ नहीं कर सकते. तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपील फाइल करी थी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, दे हैव डिसमिस्ड द अपील. उन्होंने अपील डिसमिस कर दी दिल्ली हाई कोर्ट की, एंड सेड LTC क्लेम जो वो एम्प्लॉइज हैं, दे आर नॉट लाइबल टू क्लेम द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(5) में. एंड आल्सो दे सेड कि जो revenue have said that State Bank of India is the assessee in default for not deducting the TDS at source from its employee. That's also correct. So Supreme Court ने dismiss कर दी अपील, और they said yes, it's not LTC जो आप foreign travel कर रहे हो, and then it's your duty to deduct the TDS. So this is regarding the judgment of the Supreme Court regarding the leave travel concession. तो रियल लीव ट्रैवल कंसेशन में जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन, अगेन आई एम सेइंग, जो मोटो था, जो राइटली सेड बाय द आईसीआईटी, कि जो मोटो था इस वाज दिस वाज टू प्रमोट द इंडियन टूरिज्म, कि आप एलटीसी प्रोवाइड करते हो अपने एम्प्लॉइज को, सो दैट दे कैन ट्रेवल टू द इंडिया एंड टूरिज्म कैन प्रमोट. दैट्स व्हाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैव एग्जम्प्टेड द अमाउंट, कि आप अगर होता है आप रिम्बर्स करते हो सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है वहां पे आपकी, उसके अकॉर्डिंगली आपको एग्जम्पशन हो जाएगी. बट अगर आप लॉन्गेस्ट रूट ले रहे हो या फिर आप फॉरेन ट्रेवल कर रहे हो, देन इट्स नॉट एग्जाम. सो दिस वाज द लेटेस्ट जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट. सो आई थिंक नाउ whatever you ask, I think now it's clear. And Daddy, if you have any other query, you can ask. No, sir, thank you so much for such a wonderful presentation. And I would like to request all the users that please like the video, share it with the maximum friends so that they can also get the benefit through it. And for any further query, you can mention it on the comment section. We will reply you as soon as possible. Thank you so much for Thank you very joining much. us. Thanks a lot.